Ladies and gentlemen, today we are going to discuss about NLP fundamentals for the absolute beginner. If you are a beginner and you want to bring changes in your life, you want to change life of your friends, your mother, your father, your surrounding, your brother, you want to bring some changes in their life, then you must learn neuro-linguistic programming. Once you know the basic of neuro-linguistic programming, you can reprogram your mind. So how can you reprogram your mind? Neuro-linguistic, neuro mean your brain. I'm just going to simplify this complicated term. Neuro mean your brain, linguistic mean language, but language is not what you speak and I and you speak. Language, what you speak, your verbal and non-verbal posture, gesture, signals, and reference you make through your gesture. Only 7% you convey through your word, but 93% your language need tonality, non-verbal, paralinguistic, posture, signals, and gestures. But only 7% you need to convey through word. You should not go towards 7%, rather you should go to the 93%, which is known as non-verbal language, which also included in tonality, how you convey your word through your tones. So neuro mean your brain, linguistic mean language, which is included linguistic, verbal and non-verbal. Programming mean pattern. You know, when you depress, when you get angry, when you are frustrated, and when you passionate, and when you having some tragic flaw like tragic hero, what happens to the tragic hero? They are aggressive, they are passionate, they are emotional, they are having hubris, they are proudy. So what is this? This is a pattern and programming of their mind through your neurons. Through your language, you in fact design your pattern. This pattern is known as your algorithm. On what condition you are going to get angry, on what condition you are going to fight, on what condition you are going to passionate, on what condition you are going to be aggressive with people. So you can notice, if you learn about neuro-linguistic, you can notice other people's programming and you can notice your own programming. आपको ये एज हासिल हो जाएगा जैसे ही आप न्यूरो लिंग्विस्टिक को लर्न करोगे कि मेरी प्रोग्रामिंग, मेरा एल्गोरिदम क्या है, जो मेरे सामने बंदा है इसका एल्गोरिदम क्या है. अगर मैं एग्रेसिव होती हूं, अगर मैं इमोशनल हो जाती हूं, या मैं पैशनेट हो जाती हूं, या मैं किसी बातों पे बहुत ज्यादा ह्यूब्रस प्राउडली हो जाती हूं, या मैं किसी खास बातों पे मुझे गुस्सा आता है, आई गेट एंग्री एट सर्टेन थिंग, व्हाट हैपेंस? What kind of algorithm I am running? What kind of pattern and programming I am running? To neurons, our brain, and verbal and non-verbal language, they all combine together, they prepare our algorithm. ये दोनों मिलके हमारा algorithm बनाते हैं और खास चीजों पे हमें गुस्सा आता है, खास चीजों पे हमें चीजें अच्छी नहीं लगती. मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो ये हमारा एल्गोरिदम प्रिपेयर कर देती हैं. उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, आप माने चाहे ना माने, आपकी जिंदगी उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग होती है. हम बहुत सारी चीजें अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं करना चाहते, लेकिन हम करते हैं अनकॉन्शियसली. दिस इज व्हाट आवर सबकॉन्शियस माइंड, which is containing 95%. Once you have entrance in your subconscious mind, you can do what you want. कार्ल यंग ने कहा था, एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने कहा था कि अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल नहीं किया, if you don't control your subconscious through your conscious mind, you will repeat the things again and again and you will blame to your destiny. अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल नहीं किया तो आप बार बार फेल होगे, जिंदगी में बार बार फेल होगे और किस्मत को ब्लेम करोगे. How to prepare your neurology through your language? आप इसके अंदर सीखते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर, how you program your neurology through your pattern. आप अपना जो पैटर्न बनाते हैं, इसके जरिए कैसे आप पाथवे बनाते हैं, न्यूरल पाथवे, कैसे आप
आप रूट्स बनाते हैं अपने ब्रेन के अंदर, न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर के जरिए किस तरह से आप रूट्स बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप किसी पैटर्न को बदलना चाहते हैं तो वो पैटर्न ऐसे नहीं बदलेगा। उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एक्टिविटी ऐसी तैयार करनी होगी कि उसको हम रिप्लेस कर लें। और फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ वेव्स चलती हैं। ये आपका ब्रेन है, इसके अंदर वेव्स चल रही हैं। 25 वाट का जो बल्ब है इससे हम उसको ऑन कर सकते हैं, इतनी इसके अंदर पावर है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। अच्छा, ये वेव्स जो चल रही हैं, अब जब ये काम कर रही हैं, आप इसके अंदर कोई डाटा वैसे ही एंटर नहीं कर सकते, तो खास वक्त है इसमें। यानी जब आप बेड के ऊपर सोने लगते हैं तो आप फौरन आ जाते हैं हिप्नोटिक स्टेट में, और उसको कहते हैं थीटा स्टेट। नोट कर लें, इट इज कॉल्ड थीटा स्टेट। व्हेन यू आर गोइंग टू योर बेड, यू आर गोइंग टू स्लीप, नो इट इज क्वाइट इजी टू एंटर डाटा इन योर सबकॉन्शियस। उस वक्त रास्ते खुल जाते हैं, एक्टिव माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस काम करना शुरू कर देता है। आप जब सोते हैं, आपको ड्रीम कौन दिखाता है, आपके ब्लड को कौन चलाता है, आपको पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, इसको मैनेज कौन करता है, कौन आपको सुलाता है? योर सबकॉन्शियस, जो कि 95% है। तकरीबन 7 साल तक हम बिल्कुल प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, और 7 साल के बाद सारी लाइफ हमारी उस प्रोग्राम के मुताबिक गुजरती है। अगर तो आप कॉन्शियस हो गए तो यू विल बी लकी एनफ, यू विल नो दिस what is happening with you. Otherwise you will spend your life unconsciously, and you will continuously you will blame on your luck, destinations. You will say that my destination is like that. अगर आप उसके बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं तो देखें आपके पास कितना बड़ा नॉलेज आ गया। आप किसी की लाइफ को ठीक कर सकते हैं। कोई टेंशन ले रहा है तो उसको ठीक कर सकते हो। यू हैव कैपेबिलिटी, यू विल बी एम्पावर्ड, यू विल हैव स्किल। इट इज अ स्किल, इट्स अ लाइफ स्किल। इसको कहते हैं लाइफ स्किल। लाइफ कोच भी उसको कहते हैं जो लाइफ को मैनेजमेंट बताता है। सो हो यू प्रोग्राम योर न्यूरोलॉजी थ्रू दिस प्रोग्राम। ये पैटर्न के थ्रू आप अपनी न्यूरोलॉजी को क्या करते हैं? पैटर्न करते हो, उसमें न्यूरल पाथवे बनाते हैं, उसके अंदर वेज बन जाते हैं आपके माइंड के अंदर। आपका एक एल्गोरिदम प्रिपेयर हो जाता है। एल्गोरिदम प्रोग्राम is something you are repeating, it becomes your algorithm. वो आपका एल्गोरिदम बन जाता है। अच्छा, फिर हमारे दिमाग के साथ कुछ लगे होते हैं स्कैनर। मैंने आपको बताया था कि हमारे दिमाग के साथ कुछ स्कैनर लगे होते हैं। स्कैनर मीन के स्क्रीनिंग लगी हुई है जो उसको फिल्टर करता है। इसको कहते हैं लैंग्वेज मॉडल। क्या कहते हैं? लैंग्वेज मॉडल। मतलब लैंग्वेज मॉडल के अंदर क्या क्या आएगा? इसमें आएगा डिलीट, यस, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन। यानी ये 3 चीजें आएंगी। अगर आपने चाय बनाई है, देखिए ये इसके अंदर चाय है और ये कप है, ठीक है, इसके अंदर टी है, और यहां पे कोई स्क्रीनिंग के लिए हमने यहाँ पे कोई छाननी टाइप कोई चीज लगाई है जो इसको स्क्रीन करेगी या फिल्टर करेगी। फिल्टर करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ लगाई है। अब यहाँ पे आप ऊपर रखेंगे और वो वही चीजें इसको छान के इसके अंदर कप के अंदर डालेगा जो हमें चाहिए होती है। आप ऐसा कह लें कि ये जो पूरा टी है, टी बॉक्स है, ये हमारा बेसिकली ये सारा डाटा जो है हमारे माइंड की तरफ आता है। लेकिन अपने माइंड के आगे कुछ फिल्टर लगे हुए हैं, और वो क्या करते हैं? डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन, हमारे फायदे के लिए। क्योंकि हम इतना डाटा तो अपने ब्रेन के अंदर नहीं समा सकते, तो हम उसको फिल्टर लगा लेते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि इसका मेटा मॉडल किस तरह काम करता है, इसका लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करता है, डिलीट कैसे करता है, डिस्टॉर्ट कैसे करता है, और जनरलाइज कैसे कर रहा है, आप उसकी मसाइल को हल कर सकते हैं। Come on, you are in a position to empower person to make him aware that you are being deleted something, you are deleting something, you are distorting something, and you are generalizing. इन चीजों को तुम जनरलाइज कर रहे हो, इनको डिलीट कर रहे हो, इनको डिस्टोर्ट कर रहे हो। मैंने आपको कल भी समझाया था कि इवेंट हमेशा 2 होते हैं। एक इवेंट यहां पे है जो दुनिया के अंदर होता है, ये पहला इवेंट है जो प्राइमरी इवेंट है।
एक मेन इवेंट है, किसी की डेथ होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर पड़ा, कोई। अब इसको हम इस इवेंट को परसीव कैसे करते हैं? आपके घर में 10 बंदे हैं, कोई सिचुएशन पेश आई, एक ही सिचुएशन को वो 10 के 10 डिफरेंट तरीके से उसको परसीव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर में 10 बंदे हैं, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपकी परसेप्शन उसके बारे में क्या होगी? आपके फादर की कुछ, मदर की कुछ, सिस्टर की कुछ, ब्रदर की कुछ। देखिए, एक ही इवेंट 10 मुख्तलिफ डिफरेंट परसेप्शन। व्हाई दे आर डिफरेंट? क्योंकि हर बंदे ने अपना फिल्टर जो है अलग-अलग से लगा रखा है उस इवेंट को परसीव करने की। हर बंदे की परसेप्शन उस इवेंट के बारे में डिफरेंट है। व्हाई दिस इज डिफरेंट? दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज शोइंग डिफरेंस बिकॉज यू हैव डिफरेंट फिल्टर्स इन योर ब्रेन। हर बंदे के माइंड के आगे जो फिल्टर लगा हुआ है वो दूसरे से डिफरेंट है और वो डिफरेंट तरीके से उसको लेता है। यहां तक क्लियर है बात? कि 10 बंदे हैं घर के अंदर, एक ही सिचुएशन है, एक सिचुएशन आई, कोई मिसाल के तौर पर क्राइसिस आ गया, आपके घर में क्राइसिस आ गया, पैसों की अशद जरूरत है, फादर की टेंशन कैसी होगी, मदर की टेंशन कैसी होगी, ब्रदर किस तरह टेंशन लेगा उसकी, आप किस तरह लेंगी, समबॉडी किस तरह लेगा। एक ही इवेंट, एक ही सिचुएशन, लेकिन उसकी परसेप्शन, उसको परसीव डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है। हर बंदे ने अलग अलग फिल्टर लगाए। कोई मनी को बहुत कुछ समझता है, कोई थोड़ा सा लो समझता है, कोई उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, कोई उसको मीडियोकर लेवल पे वैल्यू देता है, कोई वो किसी तरह देखता है। हर बंदे का परसेप्शन दौलत के बारे में डिफरेंट होगा, किसी खास इवेंट के बारे में डिस्कस हो डिफरेंट होगा, किसी इश्यू के बारे में डिफरेंट होगा, किसी सिचुएशन के बारे में डिफरेंट होगा। 10 बंदे 10 डिफरेंट परसेप्शन। इसका मतलब है इवेंट के अंदर इतनी जान नहीं है जितना हम उसे परसीव कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहे यार मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई है तो मैं बड़ा परेशान हूं। आप भाई परेशान, आपके लिए टेंशन होगी। व्हाट अबाउट अस? We damn care about this. Somebody damn care about this. This is you fool just taking it over your mind. आप अपने आप को फूल बनाए हुए हैं और आपने अपने माइंड के ऊपर उसको हैवी किया हुआ है। इवेंट वही है लेकिन उसकी परसेप्शन, इवेंट 1 है और इवेंट 2 आपके ब्रेन ने किस तरह रिसीव किया है, वही फिल्टर लगा के। तो event is varied according to the person, situations, and sections, community, society, people, caste. So it will be different according to the people, their ideology, their sociology, their physiology, their psychology, their mind, body. It will be different. मिसाल के तौर पर हमारे पास दूध है, जब हम उसे स्किम कर देते हैं तो जो पीछे से प्योर रह जाता है वो बेसिकली आपका माइंड अपने लिए उसको स्किम कर लेता है, किस तरह से उसने उसको लेना है। बिलीफ, मेमोरी, क्रीड और साइकोलॉजी। हर बंदा इवेंट को अपने बिलीफ, अपनी मेमोरी, अपने क्रीड, अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक ही इंटरप्रेट करता है, जैसा उसको चाहिए होता है वैसा वो लेता है। एक हमारी इनर वर्ल्ड है और इनर वर्ल्ड बनाती है हमारी स्टेट। अगर आपने सारा दिन डिप्रेस या महीना, 4 साल, 2 साल डिप्रेस्ड गुजारे हैं तो आपकी एक स्टेट बन जाएगी और वो स्टेट या तो रिसोर्सफुल होगी या अनरिसोर्सफुल होगी। और ये इनर वर्ल्ड और साइकोलॉजी आपकी एक स्टेट क्रिएट कर देती है। और आपने मेहनत किस पे करनी है? मैंने आपको पहले भी बताया था किसके ऊपर हमने मेहनत करनी है। हमने अपनी स्टेट के ऊपर मेहनत करनी है कि मेरी स्टेट कौन सी बन जाए? रिसोर्सफुल बन जाए, ना कि वो हो अनरिसोर्सफुल। So it is a big science. It's a good science. This science will enable you about your mind. Your mind, in fact, giving you disease. Your mind is going to give your body's different disease by releasing different chemicals. So these chemicals are going to affect your body. If you are living happy and you are stick to your topic and you are focused and you are giving concentration to your topic and you're happy, your mind will release serotonins and dopamines that will give you pleasures. और ये आप